Okay, Assalamualaikum everyone. How is everybody? I'll just wait for a few members to join in and then we'll start. I hope everybody enjoyed the rain, regardless of the electricity issue and the internet. I hope everybody had their pakoras and tea and had a fun moment. I love this rain. I think मैंने अपनी experience में ऐसी बारिश कराची में तो नहीं देखी. I remember I was telling my family कि ये I think बादल जो है वो भूल गए हैं कि कराची है. But आई होप जो बाहर स्टक हो वो खैरियत से घर को पहुंच जाए और एवरीबडी स्टेज होम से मुश्किल से हमें एक थोड़ी वेदर में okay, yeah, yeah. Okay, so today's session is I was personally really looking forward to it because I think आप लोगों ने देखा होगा काफी पेजेस पे मेरे पेज पे रिसेंटली एक इनिशिएटिव जो कि आगा खान और कुछ लोगों ने मिलकर शुरू किया है ऑफ डूइंग फ्री काउंसलिंग एंड थेरेपी फॉर चिल्ड्रन एंड आई थिंक इट इज सच अ ग्रेट इनिशिएटिव जिसको जब मैंने देखा मुझे इतनी खुशी हुई बिकॉज दिस इज व्हाट वी नीड स्पेशली इन दिस क्राइसिस इन दिस टाइम जिसमें क्रूशल टाइम जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज्ड हैं जो ऑफ स्पेशल नीड्स के वो कैसे मैनेज करें कहाँ जाएं क्लिनिक are not available. So keeping that in mind, these people have started a great initiative. हम उस बारे में भी बात करेंगे. In general भी जो हमारा topic है कि how do we take care of our special needs during this pandemic, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. So for that we have today Dr. Sidra Kaleem, and she is and Rehabilitation Center at Aga Khan Hospital, and she is a developmental pediatrician and pediatric neurologist. I think ये भी जब when I'll add her to the screen हम इस बारे में भी बात करेंगे कि what does this course फिर हम लोग हम अपने बच्चों को कब किसके पास लेके जाना है. आई थिंक ये भी स्ट्रगल होती है, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं. तो without further ado, I'll just add and welcome Dr. Sidra. Assalamualaikum, Dr. Sidra. Assalamualaikum, How Tuba, are and you? thank you. I'm good, and thank you for having me. And thank you for the introduction, actually. क्योंकि this would be something that I would be talking about as well. So I'll be sharing the slides if that's a possibility. Yeah. Before that, so Dr. Sidra, just for that, the members would know a little bit about you. आप इस फील्ड में Okay. कैसे आई? What was like ठीक है. what have you So been I'll tell doing? you. About you? Okay. So I was so I did my med school from Dow, and I was always interested in brain and how does it work and why do different people function differently. Having special needs people in my extended family, I had that interaction. तो मुझे लगता था कि भाई क्या different है इनके में, and then how their parents and their families' lives were affected. तो वो मुझे affect करता था. So when I came into AKU for residency, neurology was my obvious choice because I thought that I would get all the answers there. And when I was working, and I loved it. But then I realized that my expertise was limited beyond के हमने medical management कर ली, but there was something that was missing. I always wondered कि ये बच्चे घर जाके ये बच्चे long term में कैसे adults बनते हैं? How do they do? So this is where I would say my teachers at AKU were very supportive, and they helped me in getting a fellowship in Canada actually. और क्योंकि हमारे पास developmental भी लाहौर में हो रही थी, and I had my experience there, and Dr. Shazia Maqbool in Lahore also encouraged me that I should pursue this in the long run. So I got trained at McMaster University. I came back, and so I've joined AKU as an assistant professor. So I have both roles, pediatric neurology and child development. So they are similar, they overlap, but now because मुझे दोनों का taste हो गया है, so I would say there is a big difference. The difference is about the way you approach disability. So when I was a neurologist, I wouldn't say that it is about everyone. There are people who are great in understanding disability, being neurologists. But most of us have हम लोग as doctors ना हम लोग को diagnosis और जो immediate management होती है ना cure जैसे कि
जो डिसेबिलिटी में पॉसिबल नहीं होता, तो उसका शौक होता है। तो डेवलपमेंटल पीस जो है वो आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि नो, it's not like that, but you can actually alter the quality of life. You can actually make life better by modifying the environment, and that's what I've learned. And that's what makes developmental peds a bit different than the other specialty. So it is, I think it's an overlap, it's a beautiful overlap. We get exposure to rehabilitative experts like speech, OT. We are exposed to जो bread and butter pediatrics है. We are exposed to neurology, psychiatry. So it is it usually developmental pediatricians जो हैं internationally वो go to people होते हैं जिनके पास आप अपना बच्चा विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज का जब सस्पेशन होता है तो रेफर उनके पास किए जाते हैं. सो वी डोंट हैव दीज established with us, but alhamdulillah, so there are a couple of people in Lahore, in Punjab side. Now I've joined, I have my colleagues in Karachi who have an interest. So हमारी fraternity, it's growing. And then we have our colleagues in child psychiatry also, जो कि हमें जो है, जो कि हम सब मिल के जो है अपनी population को cater करने की कोशिश कर रहे हैं. So This is so amazing. ये सारी फील्ड जो है माशाल्लाह से इन पे काम हो रहा है, इस पे अब स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स हमारे पास अवेलेबल हैं ताकि हम एक बच्चे को एक ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट से देख पाएंगे. Absolutely, because that was much needed. क्योंकि अब हम सर्वाइवल से बाहर निकल आए ना, तो सर्वाइवल लाइक हमारे जो जो pediatricians and they have achieved that. अब beyond उसके जाना है. Now that surviving child has issues. Now what to do? How to go beyond? क्या कर सकते हैं हम उसको कि भाई उसकी लाइफ जो है वो जितनी भी उसकी फंक्शनैलिटी हम उसको मैक्सिमाइज कर सकें. So this is what our hope is as rehabilitative experts, right? Yeah. So Dr. Siddha, you have a presentation you have prepared to share with us. yeah. So do you want to start with that? Sure. I would just go ahead. Can you see my slide? Yes. Yes, I can see. Okay, great. So the topic, as Tuba said, is caring for a child with developmental disabilities in the COVID situation. COVID situation, yes, but also without COVID. What is the parents' ordeal and how can we support them? That's what it is about. So disabilities जो हैं, and I'll keep it in mixed Urdu and English ताकि हमारी सारी जो है कहते हैं population understand कर सके. So what I would be doing is कि मैं concept of developmental disability, challenges जो ये बच्चे या उनकी families face करते हैं, and how either of them respond to it, and what is the ideal care team is, and what should it be like. Yeah. So developmental disabilities are a group of conditions. So it includes condition in physical, learning, communication, and behavior, and anything that is impairing development. So we know कि एक बेबी जब बॉर्न होता है उससे लेके जब वो एक एडल्ट बनता है तो कितने सारे प्रोसेसेस से गुजर के वो वहां तक पहुंचता है. उस सारे प्रोसेस में कहीं भी कुछ डिफरेंस आए, दैट मे रिजल्ट इन अ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी. अच्छा, इश्यूज जो है उसके बाद भी आ सकते हैं. तो डेवलपमेंट जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बट चूंकि मैक्सिमल जो चेंजेस आते हैं वो पीडियाट्रिक एज में आते हैं, तो दैट इज व्हाई इट हैज बीन लेबल्ड दिस वे. फिर हमें पता है कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज जो हैं वो डे टू डे फंक्शनिंग को अफेक्ट करती हैं. आप बच्चों की लाइव्स, उनकी फैमिली की लाइव्स डीपली. So the diagnosis does not change, it keeps on इवॉल्व होता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेरेंट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि क्या मेरा बच्चा बदल जाएगा या वो सही हो जाएगा. तो सही की डेफिनेशन नहीं है कोई, और ये क्या कहते हैं कि यस वी कैन मेक देम फंक्शनल. तो ये अंडरस्टैंड ये करना जरूरी है कि हर बच्चे की अपनी पेस है. सही है. एंड डॉक्टर सिद्रा, ओवर हियर पेरेंट्स जो है ना ये थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि सही होने में और फंक्शनल होने में क्या फर्क है. जो इनका कॉन्सेप्ट होता है ना कि बस मेरा बच्चा सही कर दीजिए. हाँ, तो हमारे यहाँ जो एक सही की जो डेफिनेशन है वो ये है कि वो खुद से चले, अपना ख्याल रखे, सारे काम जो सारे बच्चे करें वो करें ना. तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सही. एंड आई वुड से नोबडी इज सही. तो क्या कहते हैं, हर एक के अपनी स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस का प्रोफाइल होता है. किसी की मोटर स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, किसी का कॉग्निटिव स्किल्स बहुत अच्छी होती है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं. मैं और आप भी बैठे हुए तो हम दोनों की अपनी
स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस हैं, सही। बट वो जब कम्युनिटी में बच्चे को ब्लेंड इन होने में रुकावट बनता है, दैट इज व्हाट impedes the child's functionality, and that is what we aim कि हम बच्चे को फंक्शनल बना सके, कि चाहे वो टांगों से चले, चाहे वो जो है केन से चले, चाहे वो वॉकर से चले, चाहे वो मोटराइज्ड व्हील चेयर से मूव करे, लेकिन वो मूव करे। वो स्कूल, वो एजुकेशन अचीव करना चाहता है, तो चाहे वो बात करे, चाहे वो बात ना कर सके, चाहे वो एक्सप्रेस करे, चाहे वो ना कर सके, बट उस स्कूल उसको जो है एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। तो दिस इज व्हाट फंक्शनैलिटी इज। या वो बच्चा जो है आगे जाके वो ट्रैवल कर सके, वो बच्चा अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सके। तो ये खाली उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट वो उसकी पूरी सोसाइटी और उसके एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल, एंड आई एम ग्लैड डॉक्टर सिस्टर आपने इतने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, स्पेशली द पार्ट कि चाहे बच्चा बोल के एक्सप्रेस करे या ना बोल के, बिकॉज देयर आर डिफरेंट मीडियम्स आल्सो। फंक्शनैलिटी इज कि वो उन लिमिटेशंस के साथ अपने डेली फंक्शंस कर सके। बिल्कुल। somebody taught me कि it does not matter how the child does it, it matters that he does it. तो क्योंकि गुड की तो कोई डेफिनेशन है ना, कोई कट ऑफ नहीं है, आप किसी और अंदाज से करती है, मैं किसी और अंदाज से करती हूँ, तो डज इट रियली मीन कि आप सही कर रहे हो या मैं सही कर रही हूँ? नो। और एक और पॉइंट कि हैविंग अ डिसेबिलिटी डज नॉट मीन दैट द चाइल्ड और यूथ और एडल्ट इज नॉट हेल्दी। अ लॉट ऑफ टाइम पेरेंट्स थिंक के, क्या कहते हैं, ये कोई बीमारी है। ये बीमारी नहीं है, इट्स द वे he or she has been born, it is the way that he or she is constructed. अब हमें जो है उसको अपनी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी को मॉडिफाई करना, या उस बच्चे की थोड़ी, क्या कहते हैं, स्किल्स ऐसी बिल्ड करनी है कि वो सोसाइटी में वो इंटरमिंगल कर सके। So it's not a disease. And the causes are like बहुत फैक्टर्स होते हैं, हर फैक्टर को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। बहुत दफा पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे को ही ऐसा क्यों हुआ। तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन। जेनेटिक्स का हो सकता है, और जेनेटिक्स का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में था तभी बच्चे में आया, वो हेरिटेबल होता है। जेनेटिक्स का मतलब ये कि वो ही एक बच्चा, उसी के एक, क्या कहते हैं, सेल्स में वो चेंजेस हैं, या मे बी वो हेरिटेबल भी हो, फैमिली से कहीं से आया हो। जरूरी नहीं है कि आप प्रिडिक्ट कर सकें। ये कुछ नोन कॉजेज हैं दैट माइट अफेक्ट अ चाइल्ड डेवलपमेंट। बेबी या मदर को कोई इन्फेक्शन, बर्थ रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई कि नहीं हुई। अच्छा, एज आई रिटन के अ लॉट ऑफ टाइम्स कॉज इवेलुएट नहीं हो पाता, लेकिन there are people, they are experts like our geneticists and metabolic specialists who can actually tell, who can try to investigate के what went wrong. So there are people available. It's not that कि end of story हो गया कि अगर आपके जो है बच्चे को हुआ तो आपको कभी इसका आंसर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा डॉक्टर सिद्रा, जैसे कि आपने कहा कि ज्यादातर ये केसेस में आइडेंटिफाई नहीं हो पाता था कॉज, तो क्यों जरूरी है कॉज को जानना? क्योंकि पेरेंट्स की तो यही कोशिश होती है कि आप हमें वजह बता दें, व्हाई माय चाइल्ड। देखिए, वजह मालूम करना इसलिए जरूरी है कि भाई अगर ये कंडीशन, अगर कोई, अब लेट्स से कोई जेनेटिक कंडीशन है, अब अगर, क्या कहते हैं, ये हमारा पेशेंट, वो बच्चा है जिसको हम देख रहे हैं, हो सकता है उसका नेक्स्ट जो सिबलिंग आ रहा है, या तो उसमें रिकरेंस के चांसेस क्या हैं, या अगर हमें पता है कि एक पर्टिकुलर सिंड्रोम है तो उसकी फिर, क्या कहते हैं, लाइफ की, क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री कैसी होती है, उसका नेचुरल कोर्स कैसा है, क्या वो बच्चा जो है भाई हमें उसके बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगी कि आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद उसका लाइफ कोर्स कैसा होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगी। वरना हम हमेशा सिर्फ उसकी जो सामने हमारे चैलेंजेस आते जाएंगे, हम उनकी बेसिस पे उनको डील करते जाएंगे। फिर कि कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ जो है थेरेपीज जो होती है पर्टिकुलर डायग्नोसिस के साथ ज्यादा अच्छी चलती हैं। कुछ सिंड्रोम्स के साथ आप बेहतर अंदाज में एक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है कि एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा जो है, वो जो है उसका प्रोफाइल कंप्लीटली डिफरेंट होगा किसी एक और बच्चा जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है। तो ये वाली चीजें ना हमें हेल्प करती हैं टू एसर्टेन कि भाई व्हाट वुड दिस चाइल्ड बी इन फ्यूचर, या हम उसके लिए कर क्या सकते हैं। ठीक है, तो अब जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हैं उनकी बहुत सारी सिम्टम्स है, और ये आई वुड से कि सिम्टम्स का कलेक्शन का नाम है ग्लोबल डेवलपमेंट डिले। मतलब आपका बच्चा जो डिलेड है डिफरेंट माइलस्टोन में, सेंसरी इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजन इम्पेयरमेंट हो सकती है, लर्निंग डिसेबिलिटी कि यानी कि अंडरस्टैंडिंग ठीक है, लेकिन उस
उसको आप एकेडमिक परफॉर्मेंस में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, नहीं हो या बिल्कुल। स्पीच डिले है, या ऑटिज्म हम्म, है, या एडीएचडी है, या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इन सब सबके ना सिम्टम्स में ओवरलैप भी बहुत है। तो ये कहना क्या कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे को ये सिम्टम्स है तो ये खाली इस बॉक्स में आता है, जरूरी नहीं है। हो सकता है वो कोई क्लियर बॉक्स नहीं है, दे टेंड टू ओवरलैप ईच अदर। दैट इज वाई मैंने ये बोल लिया। अच्छा, कुछ चीजें जो हर बच्चे के लिए कॉमन होती हैं, चाहे उसको डिसेबिलिटीज हो या ना हो, राइट? एंड दिस इज समथिंग आई गॉट फ्रॉम अ कॉलीग। तो ये है आईसीएफ कॉन्सेप्ट है, द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जहाँ पे वो बच्चे की फंक्शनिंग के बारे में बात करते हैं कि भाई बच्चा चाहे कोई भी हो, बच्चे का कोई भी डायग्नोसिस हो, उसकी जो नीड्स हैं वो बेसिक यही है कि वो फंक्शन करना चाहता है, वो खुद से अपना ख्याल रखना चाहता है, खुद से खाना पीना और सब कुछ करना चाहता है। उसकी फैमिली है उसके लिए इम्पोर्टेंट, फैमिली बेस्ट इन्वायरमेंट भी हो सकती है, सपोर्ट भी वही करेंगे, डिस्करेज भी वही करेंगे। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट दैट अ चाइल्ड कैन हैव इज देयर फैमिली। फिटनेस है, हर बच्चे का राइट है कि वो फिटनेस उसको अचीव हो, चाहे वो जो है चलता फिरता भागता दौड़ता हो, चाहे वो व्हील चेयर बाउंड हो। फ्रेंड्स हर बच्चे का हक है। तो be it a child with autism, be it a child with intellectual disability, be it a child with cerebral palsy. Similarly, फन हर एक बच्चे का हक है, वो चाहे जिस तरह से भी वो फन करे। एंड देन फ्यूचर, क्योंकि हर एक बच्चे या उसकी फैमिली का राइट है कि वो जो है फ्यूचर की तरफ देखें और उनके पास कोई प्लान हो हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ब्यूटिफुल, वेरी वेरी वेल सेड। फिर जो है हम होता क्या है, मतलब अक्सर जब हमारे पास जब डिस्कशन होता है तो ये कि नेगेटिव बिहेवियर है, या जो है ये इस तरह से चीजें कर रहा है, क्योंकि जब आपको हमें डेवलपमेंटल हमारे बच्चे को डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज होती हैं तो उनका इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड कंप्लीटली डिफरेंट होता है, क्योंकि जो सेंसेस हैं वो कैसे वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने, वो ब्रेन में किस तरह से वो क्या पेनफुल स्टिमुलस की फॉर्म में जा रहा है। जैसे ऑटिज्म में बहुत होता है कि सेंसरी नीड्स होती हैं या सेंसरी एवर्जन्स होती हैं, बच्चे जो है जो चीजें हमारे उसमें इन्वायरमेंट में आमतौर पे मौजूद हैं वो बच्चों के लिए पेनफुल, या उनको उनको अर्ज होती है कि उसको सीख करें, तो वो प्रोसेसिंग डिफरेंट होती है जिसकी वजह से दे बिहेव डिफरेंटली। एंड देन बिकॉज अगेन कि हमारे सेंसेस डिटरमिन करते हैं कि हमारे ब्रेन का और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन कैसे हो। तो पेन है, प्रोप्रायोसेप्शन है, वर्टिगो है, शोर है, बुखार है, दे वुड एक्चुअली रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। वो एक बच्चा जिसको एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, जिसकी कम्युनिकेशन डिफिकल्ट है, वो जो है इन सब चीजों को रिस्पॉन्ड कम्प्लीटली डिफरेंट करेगा। और एंड समटाइम्स चिल्ड्रन आस्क फॉर हेल्प इन द वे दैट दैट appears as negatively, वो उनका way of asking for help है because they don't know what is the appropriate way to ask. So sometimes बिल्कुल। it's a call for help. Then a lot of times जो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम बच्चों जिनको डिसेबिलिटीज है उनके साथ डील कर रहे होते हैं कि उनकी कैपेसिटी और परफॉर्मेंस में डिफरेंस, सही है, दे आइदर उनकी कैपेसिटी कम होती है एंड द एक्सपेक्टेशन इज हाई, या कभी कभार ये होता है कि कैपेसिटी अच्छी ज्यादा है और उनको वो स्टिमुलेशन का मौका नहीं मिल रहा कि वो परफॉर्म कर सके। तो जो जो थेरेपिस्ट हैं या जो रिहैब एक्सपर्ट्स हैं उनका काम होता है कि उस गैप को ब्रिज करना। बिल्कुल। एंड आई थिंक ये Similarly, चीज बहुत होती है कि बच्चों के अंदर जो जितनी कैपेबिलिटीज हैं पेरेंट्स स्पेशली उससे ज्यादा डिमांड और एक्सपेक्ट करते हैं, देन डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। यस, तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, अच्छा इसको डिटरमिन करने के लिए तूबा ना कि एक बड़ा होलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए चाहता है कि वो फुली फंक्शनल एंड ब्लेंड इन द सोसाइटी हो, लेकिन या आपको जो है एज 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 रिहैबिलिटेटिव एक्सपर्ट्स, एज देयर जो कहते हैं ना केयर टीम, हमें उनको ये बात बतानी है कि ठीक है कि एक एक दिस इज द एक्सपेक्टेशन दैट यू कैन गो फॉर, बट दिस वुड नॉट बी पॉसिबल इन जो कन्वेंशनल मेथड। यस, अगर कम्युनिकेशन है, जैसे लेट्स से देयर इज अ चाइल्ड विद एएसडी, so there are options like use of PECs है, use of augmentative devices है, there is a way that this child can communicate, but वो आपका conventional speech से communicate नहीं करेगा। तो ये वाली चीजों को जो है थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा
like I believe that as people who deal with children with disabilities, we are not just their doctors or their therapists. We are their friends. We know them more than their family members do. तो हमें वो connection, वो rapport को strong करना पड़ेगा. क्योंकि it's not isolated parents की गलती नहीं है. ये as a society हम सबकी है. Yeah. And then जब ये सब होता है तो how do children express aggression and withdrawal? A very common complaint, ये aggressive है, ये चीजें तोड़ता है, ये head bang करता है, ये अपने आप को मारता है, सामने वाले को मारता है, या complete withdrawal, ये जो skills थी, जो उन्होंने सीखी थी, वो अब जो है क्या कहते हैं खराब होती जा रही हैं. काफी पेरेंट्स मुझे जैसे आज आई वाज डूइंग अ क्लिनिक तो रिग्रेशन आ गया. तो कोविड में ये हुआ है. कोविड में बच्चों के रूटीन आउट हुए हैं. उनको जो है ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि भाई that kid did not know how to express but knew कि वो जो है सुबह में स्कूल जाता था. He used to go out, he used to sit in the van, स्कूल गया, टीचर से मुलाकात. There was a lot रूटीन happening inside. बिल्कुल चेंज हो गई है. बच्चों के लिए रूटीन तो इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिडिक्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर, मतलब अगर आप आई वुड से कि अगर हम अपने आप को इमेजिन करें, लेट्स से यू जस्ट I this is what I tell parents कि you suddenly go into a country where you don't understand the social norms. आपको जो है वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती, आपको जो है क्या कहते हैं वहाँ पे कम्युनिकेट करना भी नहीं आ रहा. आप क्या करेंगे? अग्रेशन आएगा. हम खुद जो है वी वुड बिकम फिजिकल बिकॉज वी वुड ट्राई टू टैप ऑन समबडीज शोल्डर. वो शोल्डर पे टैप से रिस्पॉन्स नहीं आया, द नेक्स्ट थिंग वुड बी वी वुड बी फिजिकल विद दैट पर्सन for them to give us attention, and that's what kids do. सही है. सिमिलरली विड्रॉल है कि अब उसको जो है जो स्किल उसने सीखी थी अब उसको लग रहा है कि इट इज नॉट हेल्पिंग हिम एनीमोर, तो वो रिग्रेस कर जाएगा क्योंकि उसके लिए इट वाज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट ही हैड पुट टू रीच द पॉइंट दैट ही वाज, एंड दिस इज व्हाट वी वर फेसिंग. है ना. कोविड में अभी हम यही करें कि जो चीजें जो स्किल सीख रहा था, कम्युनिकेशन बेहतर हो रहा था, ये सोशल इंटरेक्शन था, वो खत्म हो गया. बच्चों का नेचर से एक्सपोजर लिमिटेड हो गया, अपने एक्सटेंडेड फैमिली से एक्सपोजर कम हो गया, घर में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं. तो ऑब्वियसली जो है वो सारा डिसिपेट हो रहा है. बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं विद स्पेशल नीड्स जो हैं दे डोंट एक्सप्रेस but they know what's happening around the house. They sense if the parent is stressed. They sense if there are economical like the economical implications हैं COVID की. So there is a lot going on. It's just not कि COVID हुआ, infection हुआ, हम लोग घर में आ गए. We are a developing country. हमारे challenges जो different हैं और उसमें जो है इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है. मतलब पेरेंट्स के लिए स्कूल थे या थेरेपीज के लिए था वो रेस्पिट था उनके लिए. उनको रिलैक्स हो जाते थे जब वो थोड़ी देर के लिए थेरेपिस्ट के पास जाता था या वो जो है बच्चा स्कूल चला जाता था, पेरेंट्स रिलैक्स हो जाते थे. अब उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं है. इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज आ गई हैं, सबकी सैलरी स्लैश हुई हैं, पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब. तो वो हम लोग भी जो है उसको जो है बेयर कर रहे हैं. तो वो बच्चा हमसे ये सारी वाइब्स या ये सारी एनर्जी हमसे फील कर रहा है. सोशल आइसोलेशन है and fears for the future. We don't know how we are going to do the next year. Being in Pakistan, being in any other country, but especially in Pakistan with our financial problems, and again with the COVID situation, even regarding health, regarding our lives, now we don't even plan कि future क्या होगा क्योंकि we don't know how things would be. या यही तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी जो है ना, that is what is hitting us the most. यस भाई, जब हमें हिट कर रही है तो आप उस बच्चे को हिट कैसे करेगी जिसे एक्सप्रेस भी नहीं करना आ रहा कि लाइफ मेरी बहुत ड्रामेटिकली चेंज हो गई, अब मैं क्या करूं. सो हिज वे ऑफ एक्सप्रेशन वुड बी मे बी अ नेगेटिव बिहेवियर, मे बी वो चीज जो क्या कहते हैं उसका उस कोई स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर हो सकता है, कोई सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर हो सकता है. इट इज जस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दैट आई एम वरिड. So what my tip for every parent that is seeing this would be कि early intervention is the key. So अगर diagnosis है या diagnosis नहीं भी है, so it is important that you reach out to professionals who can help your child, who can understand his or her challenges and work accordingly. एंड हमेशा जो है फोकस स्ट्रेंथ पे होना चाहिए. अगर हम सोचेंगे, मेरी हमेशा हिस्ट्री का जो कॉम्पोनेंट होता है कि आपके बच्चे की स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, क्योंकि हम स्ट्रेंथ को या मोटिवेटिंग पार्ट्स को यूज करके ही इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर हम वीकनेसेस पर ही फोकस करेंगे तो वी वोंट बी गेटिंग अ लॉट डन. एंड टारगेट इज एज मच इंडिपेंडेंस एज पॉसिबल. एज पाकिस्तानी आई नो कि हम लोग टिपिकल बच्चों को भी
फंक्शनैलिटीज और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस का मौका कम देते हैं। नहीं बट फॉर होते। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हम उनको हवर करते हैं, बिल्कुल हम तो उनके ऊपर वो जो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स है या हवरिंग कर रहे होते हैं। सो दिस डज नॉट वर्क। कभी कभी छोटा रिस्क कैलकुलेटेड एंड रिस्क ले आपको लेना पता है चाहिए डॉक्टर ताकि सिमरन, बच्चा बीइंग अ इंडिपेंडेंट हो जाए, आप उसको अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आई बिकेम अ साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट, बिकमिंग अ मदर ऑफ एन सन ऑन स्पेक्ट्रम। सो मैं बहुत अच्छे से यस। अवेयर थी ऑफ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग एज, और कितनी इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है बच्चों को। बट व्हेन इट वाज अ न्यू motherhood हम्म। for me and the diagnosis was new, even me realizing it, मैं यस। फिर भी हेलीकॉप्टर मॉम बन गई थी इनिशियली। तो ये आई थिंक कि हर पेरेंट्स का तुगा वी फेस वुड होता है ऑलवेज बी पेरेंट्स फर्स्ट। बिल्कुल, लेकिन आप जो भी आपकी स्पेशलिटी हो, आप पहले पेरेंट हैं। I have children whose parents are doctors. I have children who different वो है jobs में है, mothers who are at home. But when you are a parent, you want this, जो मैंने 6 चीजें दिखाई, वही fun family, वही आप अपने बच्चे के लिए चाहते हैं, चाहे आप किसी भी उससे ताल्लुक रखते हो। And then last but not the least, empowering a person living with disability to speak for and about themselves. Because हम जैसे मैं हूँ या आप हैं, आप एक्सपीरियंस कर रही हैं अपने बेटे के थ्रू, या मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपने पेशेंट्स के थ्रू, बट हम उनकी आवाज बन सकते हैं। बट द बेस्ट वुड बी देमसेल्फ, बिकॉज हम जो उनके लिए चीजें अरेंज कर रहे हैं या हम जो उनके लिए इंटरवेंशन अरेंज कर रहे हैं, मे बी वो लॉन्ग टर्म में उनके लिए इतना एम्पावरिंग ना हो, मे बी अननोइंगली हमने उनसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज छीन ली हो। So if there are, yes, if there are such forums, I would advocate के वो बच्चे जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, उनको खुद उनके बारे में बोलने का मौका देना चाहिए, थैंक क्योंकि यू सो वो मच जिस तरह डॉक्टर से सुदरा एक्सपीरियंस फॉर कर सेइंग रहे हैं। दिस। ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है जो मैं हमेशा कन्वे करना चाहती हूँ टू द पेरेंट्स। दिस इज सो क्रूशियल एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दे कुड डू फॉर देयर स्पेशल चिल्ड्रन। Yes, because we are trying to think for them, but a lot of times we are not in their shoes. Even as parents, we are not in their shoes. So what that child is experiencing, what that child is going through, is completely different than what we are feeling for them. So let's hope कि we have such opportunities कि हमारे खुद के बच्चे जो हैं advocate कर सकें अपने लिए. So how to provide the best available care? As I said, what I have done is कि मैंने जो सारी specialities हैं, जो child disability teams का part होती है, उनको मैंने jot down कर दिया, ताकि एक्सेलेंट, सारे parents, क्योंकि ग्रेट, there are many या who have been a part of rehab team, who know कि क्या कहते हैं ये कौन है, लेकिन there are many who don't, and वो जो overlap है वो मैं चाहती हूँ कि वो समझ पाए. So developmental pediatrician, as I said, is the glue. तो वो पर्सन होता है जिसके पास सबसे पहले रेफरल आता है, क्योंकि आना चाहिए। this I tell my patients parents a lot of times कि स्पीच डिले एक समंदर का, आई वुड से ना, एक सुपरफिशियल लेयर है, उसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, उसमें फिर ये है कि उसकी सोशलाइजेशन कैसी है, उसके जो है ओवरऑल डेवलपमेंट कैसी है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग. Similarly, a child psychiatrist who have interest in childhood disabilities, वो लोग, या even child neurologist, and a good pediatrician who has interest in childhood disabilities can be that person as well. But with my experience, I would say that one should go for the above 3 specialities if such issues are occurring. फिर फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल थेरेपी है ना, वो स्ट्रेचिंग है और जो है क्या कहते हैं हाँ, मसाजिंग है. जो इट्स नॉट फिजियोथेरेपी बैड. होती है बेसिकली, कि अगर आपको कहीं कमर में दर्द है, बैक में जी, दर्द है, तो ही आपको जाना है। बिल्कुल. और इवन जैसे आई एम एन एडवोकेट व्हेन आई टेल माय पेरेंट्स के आप जो है कहते हैं ऐसे फिजिकल थेरेपिस्ट के पास ना जाएं जो एडल्ट्स का फिजिकल थेरेपिस्ट है, क्योंकि वो जब स्ट्रोक वाले पेशेंट पे काम कर रहे हैं ना, तो दैट स्ट्रोक वाले पर्सन हैज एक्चुअली डन जो उसकी मैक्सिमम फंक्शनैलिटी थी उसने अचीव कर ली, तो उसको वापस लाना इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग देन समबडी, एक बेबी जिसने अभी गर्दन भी नहीं ठहराई, बैठा भी नहीं, चला भी नहीं, तो उनका अप्रोच कम्प्लीटली डिफरेंट है. सो गो फॉर people who have pediatric exposure. दिस इज अ Similarly, वेरी वो एक्सीलेंट थेरेपिस्ट टिप। जो मैंने है कभी ऐसे गोल्स सोचा नहीं। आपको दें, क्योंकि ये डिफरेंट वो है ना कि आप जो है हम्म, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट है हैबिलिटेशन. तो
the place where I was trained, my teacher used to say habilitation. So आप बच्चों को rehab नहीं करते, rehab आप उसको करते हैं जिसको stroke होता है. Habilitation means कि जिसने कभी उड़ना नहीं सीखा, जैसे किसी bird ने, कि बच्चे ने जब उड़ना नहीं सीखा, जब आप उसको उड़ना सिखाते हैं, that is habilitation. Rehab is कि a bird जिसका wing टूट गया है और आपने उसको bandage किया और फिर आप उसको rehabilitate कर रहे हैं. तो हम तो उनको उड़ना सिखा रहे हैं ना, so we are basically habilitation experts. दूसरा ये कि आप जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनके पास गोल्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि हम उनका एक का ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम फाइन मोटर स्किल्स पे काम करना है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग पे काम करना है. फिजिकल थेरेपिस्ट का काम जो है मोटर स्किल्स पे काम करना है. मोटर स्किल्स के गोल्स हैं कि भाई अब क्रॉलिंग हो गई, अब क्या कहते हैं वॉकिंग है, स्टैंडिंग है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स है, राइडिंग अ साइकिल है, स्विमिंग है. माइलस्टोन्स कभी रुकते नहीं है. तो लोगों को लगता है कि बच्चा चल गया तो बस अब हो गया. नो, इट डज नॉट एंड देयर. इट्स अ लॉट अबाउट मोटर कोऑर्डिनेशन दैट these children are missing on. तो ये अपॉर्चुनिटी इनको देने की जरूरत है. Similarly, psychologists or behavior therapists. So there is an overlap, but both of them have different expertise as well, right? Tuba, and you would be the expert to tell that. कि psychologist assessments हैं वो है, and behavior therapist उनकी अलग expertise होती है कि वो ओवरऑल बिहेवियर या मेंटल वेलबींग पे काम करते हैं. अ लॉट ऑफ टाइम्स पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि नेगेटिव बिहेवियर की वजह से वो खाली बिहेवियर थेरेपिस्ट से फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बच्चा इसलिए नेगेटिवली परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसको तो एडीएस करने में मुश्किल है, उसे कम्युनिकेट करने में मुश्किल है. तो वो कहते तो ये कि हम एक प्रॉब्लम से आए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमें जो है 3 डिफरेंट मोडालिटीज में जो है घुसा दिया, बिकॉज देयर आर थिंग्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग दैट हिस्ट्री टेकिंग एंड दैट इंटरेक्शन. स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट जो है कम्युनिकेशन के लिए. सो इट कुड बी स्पीच इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन. इट कुड बी आपका जेस्चरल यूज ऑफ लैंग्वेज भी हो सकता है, यूज ऑफ ऑगमेंटेटिव डिवाइसेस भी हो सकता है, यूज ऑफ पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम भी हो सकता है, यूज ऑफ साइन लैंग्वेज भी हो सकता है. इट कुड बी आइदर ऑफ दीज थिंग्स. Then there are people And called recreational communication here therapists. doesn't only mean कि You will have to guide me. थेरेपिस्ट जो है वो बोलना सिखा देंगे. ये भी एक मिसकंसेप्शन है यहाँ कि मैं अपने बच्चे को बिल्कुल इतने अरसे से स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेज रही हूँ मगर मेरा बच्चा अब तक बोला नहीं. बिल्कुल कम्युनिकेशन के और तरीके वो सिखा सकते हैं. तो एंड आई टेल, और ये आई थिंक आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू से कि कभी कभार ऐसा होता है कि बल्कि अक्सर होता है कि पेरेंट्स आते हैं कि हाँ नहीं बोल रहा और स्पीच, और कहते हैं कि नहीं हमें जो है स्पीच, हम नहीं चाहते कि हमारी स्पीच थेरेपिस्ट जो है ऑगमेंटेटिव डिवाइसेस की तरफ जाए या किसी ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ जाए. मैं कहती हूँ क्यों, कह रहे वरना वो फिर उसी में चला जाएगा. नो, बच्चे की वोकैबुलरी अगर जो है साइन से बढ़ रही है, अगर जेस्चर से बढ़ रही है, अगर किसी और तरीके से बढ़ रही है, बढ़ने दें. अगर वोकैबुलरी नहीं बढ़ेगी तो स्पीच भी नहीं आएगी. सो गिव दैट, वो जो ये जो अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, ये कभी वो ये ब्रिज करते हैं. अगर बच्चे ने मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि एज अ मदर मुझे लग रहा था मेरा बेटा अभी ही इज नॉन वर्बल और वो पेक्स पे है, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन पे. और जब ये स्टार्ट हो रहा था तो मैं बहुत ही थोड़ी सी डिलेमा में थी कि व्हाट इफ ही इज जस्ट स्टिक टू द पिक्चर्स, व्हाट ही नेवर पुट्स इन एफर्ट टू टॉक. बट उससे मुझे रियलाइज हुआ कि इसकी ऑलरेडी इतनी सारी वोकैबुलरी थी क्योंकि उसको पता था और मुझे नहीं पता था, बट नाउ ही हैज अ मीडियम टू शो. तो उसकी फ्रस्ट्रेशन भी कम हुई, उसको और कॉन्फिडेंस आया, उसकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होना शुरू हुई कि नाउ आई कैन कम्युनिकेट. यस, इट्स सच एन इम्पोर्टेंट स्किल. हमारा जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वे ऑफ इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड इज कम्युनिकेशन ना, कि हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम महसूस करते हैं, बट हाउ डू वी एक्सप्रेस? It could be words, it could be pictures, it could be sign, it could be gestures. तो हमें इस बारे में ओपन होना पड़ेगा. हम अपने बच्चे से सेल्फ एस्टीम या जो है उसका कॉन्फिडेंस नहीं छीन सकते, बिकॉज वी वांट द चाइल्ड टू स्पीक. Similarly, recreational therapists, जैसे as I said कि these kids deserve fitness, these kids deserve fun. So there are people, there are experts who do that, and inshallah we'll have them in future, कि जो ये पेरेंट्स को बता सकें कि भाई क्या कहते हैं सही अब थेरेपीज हो गई, क्योंकि थेरेपीज इज अ लॉट ऑफ एफर्ट, राइट. आप स्पीच बच्चे के लिए जो चीज वो उसके लिए डिफिकल्टी अब वो सीख रहा है, फिजिकल है, ऑक्यूपेशनल है, तो उसके लिए स्पोर्ट्स, उसके लिए प्लेजर की क्या चीजें वो भी ढूंढनी चाहिए. सो जस्ट नॉट फोकस ऑन दैट. एंड देन स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट. तो ये नेक्सस तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे बच्चे अपनी जिंदगी का काफी सारा टाइम स्कूल में गुजारते हैं.
अगर उनको वो एकेडमिक हमारे स्पेशल एजुकेशन या हमारे टीचर्स या हमारे एकेडमिशियंस ऑन बोर्ड नहीं है, तो वो सारा एफर्ट आपका गोज टू वेस्ट. एंड बट माशाल्लाह I've had some good interaction with our teachers, and I know they are passionate to change the life of the children with disability. So like things are happening. I'm happy in that sense. तो ये मैंने डायग्रामेटिक वे में समझाया है कि बेसिकली सेंटर में हम पेरेंट है, बच्चा है और Okay. उसका केयर गिवर है. एक साइड पे उसका डॉक्टर है जो कि डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हो सकता है, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है, चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट हो सकता है. एक एंड पे उसकी रिहैबिलिटेशन टीम हो सकती है, एक एंड पे उसके स्कूल एक्सपर्ट होंगे, और एक एंड पे उसका प्राइमरी केयर प्रोवाइडर होगा. प्राइमरी केयर प्रोवाइडर कैन बी द जनरल पीडियाट्रिशियन, क्योंकि ये जो सारी स्पेशलिटी मैंने मेंशन की है, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट या चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट, दे उनका एक नीश है, दे वर्क ऑन पर्टिकुलर गोल्स या पर्टिकुलर टारगेट्स होते हैं उनके. वो जो है आप बच्चे के जो जनरल इश्यूज हैं वो इतने अच्छे डील नहीं कर सकते. देयर आर पीपल फॉर दैट. सो इट इज गुड टू हैव ऑल दीज पीपल ऑन बोर्ड, बट रियलाइजिंग द फैक्ट कि हम में से कोई भी सेंटर में नहीं है. सेंटर में पेरेंट है और उसका बच्चा है. तो द प्लान अकॉर्डिंग टू देम. तो हम जो प्रमोट करते हैं वो है फैमिली centered care, where the child comes in the middle, where the family comes in the middle, where there is the choice, family की choice है. हम एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें. तो आई थिंक कोई भी डिसेबिलिटी का प्लेटफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हो सकता जिसमें पेरेंट का फीडबैक या फैमिली की रिप्रेजेंटेशन ना हो, और उसमें पार्टनरशिप की जरूरत है. पेटर्नलिस्टिक एटीट्यूड नहीं चाहिए कि हम एज डॉक्टर्स या हमारे जो थेरेपिस्ट कॉलीग्स हैं वो जो है आपको गाइड करें और आप रिलीजियसली फॉलो करो. देयर माइट बी थिंग्स जो आपके लिए वर्क ही ना करें. एंड दैट इज वेयर वी हैव टू ड्रॉ द लाइन कि मेरा गोल इम्पोर्टेंट है या मदर का गोल इम्पोर्टेंट है. मैं जो चाहती हूँ And वो I think इम्पोर्टेंट है या जो it's पेरेंट a एट ऑफ द teamwork. डे चाहता है वो It takes a village to raise a child, and I think इम्पोर्टेंट. this is the best representation of that. डेफिनेटली. यस. And now coming to our initiative. So जब हमने ये सब देखा कि we all of us as part of society and as part of Pakistan, हमने देखा कि भाई हमारे बच्चे जो हैं typical and atypical both, because of this COVID lockdown, they वही वाली बात है कि there was a sudden change in their life, और बहुत ही मैसिव किस्म का चेंज था कि उनके स्कूल्स बंद हो गए, उनका बाहर जाना बंद हो गया, ईद ऑल्टर हो गई, सब कुछ चेंज हो गया. सो इट इम्पैक्टेड देयर मेंटल हेल्थ. इंटरनेशनली बहुत काम हो रहा था, लोकली सब लोग फ्रेगमेंट्स में ट्राई कर रहे थे. So what happened was a couple of colleagues in different hospitals and different non-for-profit organizations work together and develop this initiative. I wouldn't say that I'm responsible. There are a lot of people on board who have been working on this. And तो मकसद ये है कि मदर्स को या केयर गिवर्स को या फादर्स को एम्पावर करना कि वो अपने बच्चों को थेरेपीज खुद घर में प्रोवाइड कर सकें. तो हमने जो इनिशिएटिव है इसमें ये 3 आर्म्स हैं. तो पहला आर्म जो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, फिर दूसरा आर्म है टिपिकल चिल्ड्रन विद बिहेवियर प्रॉब्लम, तीसरा है एडोलेसेंट्स. तो हम तीनों को डिफरेंट तरीके से केटर कर रहे हैं. जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं और टिपिकल छोटे बच्चे हैं उनके जो है पेरेंट्स को कर रहे हैं, और जो एडोलेसेंट्स हैं उनको हम डायरेक्ट ग्रुप थेरेपी में ले रहे हैं. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम गोल सेट करते हैं उनके इश्यूज और स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करते हुए, और फिर उनको जो भी ये ग्रुप में ये सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, हर एक को जो है 6 सेशंस का अपॉर्चुनिटी मिलती है, और दिस कैन आल्सो बी रीडन. सो इफ एट द एंड ऑफ एट द एंड ऑफ 6 सेशंस दे थिंक कि जो है चीजें इंप्रूव नहीं हुई, तो दे कैन ऑलवेज डू इट अगेन. ऑल्सो अगर जो ग्रुप्स हैं जो बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं, वो उनकी नीड्स को देखते हुए बच्चे की नॉट द लेबल. ऐसा हो सकता है कि एक ग्रुप में एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा और एक ASD वाला बच्चा, क्योंकि उनका प्रोफाइल सिमिलर है. तो हमने ये चीज अडेप्ट की कि भाई हम लेबल्स पे क्यों जाएं, हमें जाना है कि उसको उनकी नीड्स कैसी हैं. सो दैट इज व्हाट वी हैव वर्कड ऑन. फिर हमें ये भी पता है कि जब ये सारा कुछ हमारे बच्चे yes. So what is happening is जैसे I did a clinic today. So हम ट्राइजिंग करते हैं पहले कि इन ग्रुप्स में बच्चों को डालते हैं, ठीक है. फिर उनके जो है क्लिनिक्स उनको ऑफर
की जाती हैं, थ्रू आउट 5 days a week है। फिर उसमें जो है उनके ग्रुप्स पे, डिफरेंट ग्रुप्स पे काम होता है। फीडबैक मैकेनिज्म बहुत अच्छा है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि पेरेंट्स को सिखाया, पेरेंट्स ने घर पे Mhm. किया, उसकी वीडियोस बनाई, और नेक्स्ट टाइम जब वो अपने थेरेपिस्ट से मिलेंगे तो वो वीडियो दिखाएंगे, ताकि थेरेपिस्ट उनको उनकी वीडियो की बेसिस पे जो है उनको गाइड कर सकें गाइड कर कि सके व्हाट कि यू व्हाट डिड वेंट रॉन्ग, हाउ रॉन्ग, कुड यू व्हाट इज राइट। मॉडिफाई इट, या एंड बिल्कुल बिल्कुल। यस। फिर फिर ये कि वी अंडरस्टैंड कि दिस इज, ये खाली बच्चे के लिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का बायस नहीं होगा, ये पेरेंट्स के लिए भी है। तो हमारे पास I think there's some issue with the net. I'll just wait for her to join back. बट आई होप जो लोग देख रहे हैं, आई अभी टिल नाउ आई फेल्ट कि ये इतनी बेसिक और प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें पता है, समटाइम्स हमें रियलाइज नहीं होती कि हमें उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते। एंड आई एम सो हैप्पी कि डॉक्टर सिद्रा हैज टच all the basic things जो कि as a part of team neurodiversity, me and my panelists have all worked so hard for building that basic where she had all the केयर टीम में होते हैं और कैसे वो लेके चलते हैं। आई थिंक वो वाली सारी चीजें आई थिंक सो। यस। हेलो। हेलो, कैन यू सी मी एंड हियर मी, तूबा? यस आई कैन हियर यू। वाज योर प्रेजेंटेशन ओवर? यस। सो व्हाट डिड आई मिस ऑन? तो मेरा जो लास्ट स्लाइड था, इट वाज अबाउट हमारा इनिशिएटिव में मेरे जो कंपोनेंट्स है वो मैंने मेंशन किए, और ये भी कि पेरेंट्स के लिए भी सर्विसेज है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर बच्चों को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, यानी कि दे नीड टू सी अ डॉक्टर, सो देयर आर डॉक्टर्स हु आर वर्किंग ऑन वॉलंटरी कैपेसिटी एंड आर विलिंग टू प्रोवाइड इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशंस एज वेल। ओके। एंड डॉक्टर सिद्रा, पेरेंट्स के लिए आपने कहा कि भी फैसिलिटीज हैं, तो पेरेंट्स के लिए कौन सी बिल्कुल। फैसिलिटीज अवेलेबल तो जैसे कि पेरेंट्स को अगर मेंटल हेल्थ, वो उनको भी लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बर्नआउट बहुत ज्यादा है। आपको क्या कहते हैं, वो रेस्पिट खत्म हो गया है, थेरेपीज जो है आपको खुद देनी पड़ रही हैं, यू डोंट हैव सपोर्ट एट होम, सो पीपल लूजिंग देयर जॉब्स। तो यस, वी वर एंटिसिपेटिंग कि हम अगर बच्चे को खाली मैनेज कर रहे हैं और उसकी उसके पेरेंट्स को वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करे, तो इट वुड नॉट बी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन। सो हमारी जो पार्टनरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि सेहत कहानी है, two or three that I'm missing on. So they are there, who are actually providing services, mental health services to adults, their parents, their caregivers as well. I'm glad कि it is आप लोग पेरेंट्स my son was also getting every therapy online and I was getting trained and I had to apply on him और मैं ऐसी Yes. वीडियोस बनाती थी but
हेलो। हेलो। या यस। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि उस वक्त जो है मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता था एज पेरेंट्स कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं, और इतने सारे गोल्स होते थे और फिर वो कभी कुछ बिल्कुल। सक्सेसफुल हो जाते थे, कुछ नहीं। तो आई एम ग्लैड कि आप लोग के पेरेंट्स के लिए भी बिकॉज पेरेंट हमारा इम्पोर्टेंट टूल है। आई वुड से जो हमारे बच्चे तक पहुंचने का जरिए वो पेरेंट है। अगर पेरेंट खुद जो हैं एग्जॉस्टेड हैं, दे आर नॉट सपोर्टेड, तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो फिर वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू अचीव दैट। सो आई थिंक क्या कहते हैं कि एज यू सेड कि वो विलेज को हमें सही करना है ना, तो बिकॉज इफ यू हैव टू रेज अ चाइल्ड वी हैव टू वर्क ऑन द विलेज। सो पेरेंट्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई हो नहीं सकता। आई थिंक कि अब जाके जो है इंटरनेट जो है वो अच्छा खासा तंग कर रहा है, वो ग्लिचेस आ रहे हैं। बट आप कह रही थी कि पेरेंट्स इंपॉर्टेंट टूल हैं। हम्म। यस एब्सोल्युटली, क्योंकि वो वही है ना हमारे हम हमारे बच्चे तक रीच करने का तरीका। तो आप लाइक यू कैन वेल इमेजिन व्हाट्स हैपनिंग अराउंड राइट नाउ के जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो पेरेंट्स पे आ गई हैं। तो इट इज अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ the society to support them, and especially kids with special needs, and the ones even with the typically developing जिनको behavior problems हो रही हैं। जो Okay, so are and there Dr. Sudha, yes first of all, I loved your presentation. I'm glad कि you touched all the basic things जो कि जैसे कि मैं आई थिंक हमारे सेशन से पहले आपसे कह रही थी कि मुझे लगता है, जो मुझे फील होता था कि एज पेरेंट्स उनकी बेसिक्स नहीं बनी हुई, उनको एक्चुअली एबीसीडी नहीं पता, वो डायरेक्ट सेंटेंसेस बनाने पे चले गए। दिस इज व्हाट आई थॉट, यू नो, वो बहुत पहले लेवल से गेम स्टार्ट कर रहे थे, तो इसलिए उनकी बच्चों की बेस स्ट्रांग नहीं थी। एंड आई थिंक आई एम hmm. ग्लैड एंड यू हैव एक्सप्लेन्ड इट सो ब्यूटिफुली। और बहुत सारी चीजें तो इवन मुझे पता होने के बावजूद बहुत सारी नई चीजें नहीं पता थी, और आज आपकी प्रेजेंटेशन के थ्रू पता चला। थैंक यू एक्चुअली। ये वो वाले सारे सवाल थे जो मुझसे पेरेंट्स ने एक्चुअली पूछे थे क्लिनिक्स में। सो आई थॉट लेट्स जस्ट कंपाइल ऑल ऑफ देम टुगेदर, एंड ताकि ये अपॉर्चुनिटीज कि आप क्या कहते हैं स्पेशल नीड्स की किसी भी ग्रुप में या उस पे वो करें, तो ये वाली अगर आप ये मैसेज लाइक व्हाई वुड आई वांट टू टॉक अबाउट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स जब सिंपल चीजें एड्रेस नहीं हुई हैं। तो दैट्स एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। And thank you so much for doing this. I think it was very well explained, and I'm so happy. And it was an honor to have you on my page, because यही वो चीजें हैं जिस पे as an admin मेरा target था कि मेरे members को ये information मिले. So thank you so much. And before you leave, Dr. Siddha, do you want to say anything? आई वुड से कि सो देर आर लाइक जैसे आपका पेज है या बहुत सारे ग्रुप्स हैं या हमारा इनिशिएटिव है, तो पेरेंट्स आर नॉट अलोन इन दिस। तो देर आर Hmm. बस एवेन्यूज को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। वी आर ट्राई देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू रीच देम, बट थोड़ा सा एफर्ट पेरेंट्स की तरफ से होगा तो इनशाला वी वर बहुत प्रिमिटिव स्टेज में थे इन टर्म्स ऑफ डिसेबिलिटीज, लेकिन अब पेरेंटल एडवोकेसी इतनी अच्छी हो गई है कि वी आर बिकमिंग दैट टाइट निट नेटवर्क या एक खुद की कम्युनिटी एक अंदर से इवॉल्व हो रही है। सो माई लाइक समथिंग दैट आई वुड वांट पेरेंट्स टू डू इज जस्ट रीच आउट। लाइक आपके आपको अगर लगता है कि देयर इज नो वे ऑफ रीचिंग अस, there are emails, there are groups, and there are communities, and just don't feel alone, because I think this ये जो है दिस वुड बी अ किलर फॉर एवरीवन मेंटल हेल्थ के लिए। व्हेन यू फील लोन, यू फील unsupported, that is when you lose your Oh, yeah. strength. That would be बिल्कुल, एंड my आई थिंक ये बहुत बड़ी बात होती है जब when someone feels that you are not alone, as you said. yes, yes. So thank you so much, Dr. Sudra, Thank you. for doing this for my page. It was lovely having you. It was a pleasure to actually talking to you and sharing what we as a team are doing. So thank you for providing us with the platform to represent our work. Thank you. Bye. Thank you. So, guys, that was Dr. Sidra, and
ऐसे लोगों से बात करके उनकी इनिशिएटिव्स के बारे में पता जब चलता है, एक उम्मीद जागती है, एक खुशी होती है एज अ पेरेंट, एज एन एडमिन ऑफ अ पेज, एज अ टीम दैट इज वर्किंग सो हार्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कि लोग हैं जो कि अपने आउट ऑफ वे जाके करने को रेडी हैं और कर रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है। एंड मैं जो जिन्होंने इनकी जो प्रेजेंटेशन है, समवन हैज सेड दैट मिस द प्रेजेंटेशन, डोंट वरी, इट विल बी पोस्टेड ऑन द पेज, इट विल स्टे देयर, आई विल अपलोड द यूट्यूब लिंक आल्सो सो दैट यू कैन शेयर इट विद पीपल अराउंड, क्योंकि आई थिंक ऐसे इनिशिएटिव्स के बारे में जितना लोगों को पता चले उतना अच्छा है। इस पेंडेमिक में, इस मुश्किल वक्त में, जो पेरेंट्स ऑफ स्पेशल नीड्स जो गुजर रहे हैं मुश्किलात से, और जो बच्चे जिस मुश्किलात से गुजर रहे हैं, एक ये टीम्स हैं जो खड़ी हुई हैं कुछ अच्छा करने के लिए। तो आई एम ग्लैड कि ऐसा है। तो जितना हम प्रमोट कर सकें उतना अच्छा है। मैं इस इनिशिएटिव के बारे में डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और कैसे आप उनको अप्रोच कर सकते हैं उस बारे में भी लिख दूंगी। एंड अगेन, जिन्होंने मिस कर दिया है, डॉक्टर सिद्रा गेव एन एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन, तो आप प्लीज उनकी वो प्रेजेंटेशन जरूर देखिएगा। आई थिंक उन्होंने इतने अच्छे से चीजें एक्सप्लेन की थी, एंड इट वाज अ ग्रेट हर। एंड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग प्लीज क्वेश्चन कर दें इन द कमेंट्स बिलो, एंड शी और हर एनी मेंबर ऑफ हर टीम विल अप्रोच यू, एंड आई विल प्रोवाइड यू ऑल द डिटेल्स। अदर देन दैट, मैं एक पॉइंट मैंने सेशन से पहले ही सोचा था कि मैं डॉक्टर सिद्रा से जरूर बोलूंगी, और मैं भूल गई, तो मैं अभी बोल रही हूँ, बिकॉज मैं चाह रही थी डॉक्टर सिद्रा भी अपना इनपुट दें। कि रिसेंटली मैंने, इट वाज डेवास्टेटिंग फॉर मी टू सी दैट व्हेन अदर ग्रुप्स आर प्रोवाइडिंग information regarding medications and different diets and protocols, without they are actually prescribing and suggesting to other parents without involving proper consultations, doctor consultations. प्लीज ऑलवेज रिमेम्बर, हर बच्चा अलग होता है, हर मेडिकेशन, हर डाइट, इवन हर थेरेपी एक हर बच्चे पे नहीं चलती, हर बच्चा डिफरेंट होता है। अगर आपको लगता है कि मेडिक एक तो प्लीज क्योर ढूंढना बंद कर दें। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस उसकी एडेप्टेशंस पे काम करना है, कि और वो उसको हम कैसे ट्यून कर सकते हैं टू अडॉप्ट इन आवर वर्ल्ड, दैट्स इट, दे आर एब्सोल्युटली फाइन। तो क्योर ढूंढना बंद कर दें इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेशन स्पेशली। एंड इफ यू थिंक कि मेडिकेशन, मेरे दोस्त ने अपने बच्चे पे ट्राई किया एंड इट वर्क, या किसी और को मैंने देखा इट वर्क, आपने कहीं पढ़ा, प्लीज पहले जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये बहुत जरूरी है। विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग, विदाउट प्रॉपर एनी कंसल्टेशन आप नहीं दे सकते, यू विल नेवर नो। इवन डाइट चेंज करना, आप लोगों को अंदाजा नहीं है डाइट चेंज करने से कितना ज्यादा अफेक्ट हो सकता है एडवर्स ऑन द चाइल्ड। और अगर हो सकता है बच्चा ग्रूम हो रहा हो, देयर इज अ हाई चांस दैट दे विल सडनली रिलैप्स। तो जब मैंने ये सेशन स्टार्ट होने से पहले के सामने ये बात रखी थी, तो डॉक्टर सित्रा भी यही कह रही थी कि ये एक बहुत बड़ी हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि टू मच इंफॉर्मेशन भी जो पेजेस पे प्रोवाइड कर दी जाती है। आपने फैसला लेना है कि सही इंफॉर्मेशन क्या है। इंफॉर्मेशन तो आपके पास आती रहेंगी, आप प्लीज किसी से पूछें। हेल्प सीक आउट करने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ये आपके बच्चे का सवाल है। इट्स नॉट अस वर्सेस देम, इट्स वी वर्किंग टुगेदर फॉर योर चाइल्ड्स बेटरमेंट। मेडिकेशंस का इतना हवा जो बन चुका है, ठीक है आपको लगता है मेडिकेशन इज द ओनली आंसर, ओके, टॉक टू योर डॉक्टर फर्स्ट। मुझे इतना अफसोस होता है कि देयर आर ग्रुप्स जो कि इतने सारे मेंबर्स से भरे हुए हैं, एंड पेरेंट्स आर ओपनली प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशंस, और उनके एडमिन्स कोई एक्शन नहीं लेते। आई एम गोइंग टू कॉल आउट देम, आई एम गोइंग टू रीच टू देम, आई एम गोइंग टू एडवाइज देम, एंड आई एम गोइंग टू टेल देम कि ये गलत है एंड दे नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल। खैर, तो मुझे ये बात करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त करना भूल गई डॉक्टर सिद्रा के साथ। बट कीपिंग दैट पॉजिटिव थिंग राइट नाउ, जो उनका इनिशिएटिव है, आई इट्स अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव राइट नाउ। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द टीम टू डू सर्टेन थिंग्स। और इसके अलावा आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए हो, आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो, आस्क अस, आस्क मी, आस्क माय पैनल, वी आर गोइंग टू गाइड यू टुवर्ड्स दैट। So thank you so much. And एक चीज मैं बोल दूं, maybe after Eid now I'm going to do certain sessions. ईद से पहले शायद अब मैं कोई schedule ना करूं, because there are things, many things going on. So inshallah now I'll schedule all the sessions after Eid. So have a safe
and happy Eid. Safe is very important because nobody is following SOPs. So please be careful. हर लोगों को फॉलो करना बंद कर दें, वो करें जो सही है. तो अपने और अपने बच्चों का ख्याल रखें एंड टेक केयर. Stay safe, stay happy, enjoy the weather, and Eid Mubarak in advance. Allah Hafiz.